Hello everyone, today we will be discussing central nervous system and this is the first lecture of this huge series. Central nervous system is an important part of the MBBS first year syllabus from the physiology, and this video is just going to be a sort of a introduction video about this particular section from the physiology. So central nervous system, as we already studied in our 12th grade a little bit about it, okay, we have peripheral nervous system and we have autonomic nervous system. So specifically, if I start with the autonomic nervous system, the autonomic nervous system is further divided into the sympathetic part and the parasympathetic part. Now, if we associate it with the respect of the spinal cord, then the thoracolumbar outflow, that is from T1 to L2 part of the spinal cord, represents the sympathetic part, whereas the parasympathetic part is represented by the craniosacral outflow, that is the cranial nerves 3, 7, 9, 10 and a few sections from the sacral part of the spinal cord. So this is important so that we know कि हमारे spinal cord का कौन सा segment जो है sympathetic और parasympathetically act करता है. Now sympathetic system, the ganglion for sympathetic center is located near the spinal cord. The postganglion nerve fiber is long. I think we are familiar and we also studied about in our anatomy कि हमारा जो vertebral रहता है उसके पास में ही हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसा सिंपैथेटिक चेन रहती है. दिस सिंपैथेटिक चेन इज नथिंग बट द रिले जंक्शन, दैट इज द गैंग्लियन, जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो रिले करती है. ओके, सो इसीलिए मैंने लिखा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो गैंग्लियन रहता है दैट इज द रिले सेंटर. इट इज सिचुएटेड नियर द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है. कहाँ पे? नथिंग बट द सिंपैथेटिक चेन. ओके, वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक का जो सिस्टम है उसका जो गैंग्लियन है वो कहीं ना कहीं ऑर्गन के पास सिचुएटेड होता है. इट इज़ नियर द ऑर्गन. So the pre-ganglionic fiber is long, but the post-ganglionic parasympathetic fiber is generally anaxonal. An important point to be noted. Basically मैं यहाँ पे रिले की बात करूँ कि जहाँ पर एक नर्व एंड होती है, एक साइनैप्स होता है और नर्व फाइबर दूसरी नर्व का शुरू होता है. तो ये जो गैंग्लियन है, ये जो रिले प्लेस है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए स्पाइनल कॉर्ड के पास ही सिचुएटेड है, लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक के लिए ऑर्गन के पास सिचुएटेड है. और जो दूसरा ऑर्डर का न्यूरॉन है ये जनरली एनाक्सोनल होता है. Now another point for your information, amacrine cells from the retina. We know कि retina में 10 layers होती है and उन layer के अंदर कुछ horizontal cells है, amacrine cells है, bipolar cells है. तो उसमें से जो amacrine cells है ना वो भी anaxonal होते हैं. Just an information ताकि मतलब it will help you in your MCQs. ठीक है. Now let's talk about the receptors. We have acetylcholine receptors which are of muscarinic type and nicotinic type. Now muscarinic is something that we have heard for in relation to the heart. ठीक है. Nicotinic further दो types के होते हैं, N1 N2. Muscarinic M1 M2 M3 M4 ऐसे वाले रहते हैं. Now places जहाँ पे receptors जो है ये present होते हैं. Nicotinic receptors are generally present in the neuromuscular junction. We have studied about this in our muscle part. And nicotinic CNS में रहते हैं, गैंग्लिया के अंदर रहते हैं. वहीं पे मस्कैरेनिक में M2 टाइप के रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में रहते हैं एंड M3 जो टाइप के रिसेप्टर्स है वो विसरा, यानी कि दे आर लिटिल एक्साइटेटरी टू द विसरा, और M2 टाइप के रिसेप्टर्स हार्ट के लिए इनिबिटरी रहते हैं. Now receptors for catecholamines, that is non-adrenaline and adrenaline. So we have alpha and beta type of receptors. We have alpha receptors, alpha 1 receptors which are excitatory, which have an excitatory effect in the smooth muscle layer of the blood vessels in the entire body. In the smooth so जो smooth muscle की layer रहती है in of the body, उसके अंदर जो हमारा blood cells, basically blood vessels जो है, तो उसके लिए excitatory रहती है. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा excitatory है for the smooth muscle of the blood. यानी कि जब ये contract करेगा तो smooth muscle जो है वो उसका कहीं ना कहीं वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा. वहीं पे जो अल्फा 2 टाइप के रिसेप्टर्स रहते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. इट कॉजेज द फीडबैक इनिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन. वहीं पे बीटा 1, अब बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है, तो बीटा 1 हार्ट के लिए एक्साइटेटरी है और वहीं पे M2 हार्ट के लिए इनिबिटरी है, और बीटा 2 जो है वो इनिबिटरी है ऑन द ब्रोंकियल ट्री, ब्लड वेसल्स एंड स्केलेटल मसल, उनके लिए इनिबिटरी है. Now this is something that we had to know.
नाउ वहीं पे अगर मैं प्यूपिल आई के बारे में बात करूँ, सो वी हैव सर्कुलर मसल्स एंड वी हैव रेडियल मसल्स। रेडियल यानी कि जो लंबे लंबे प्रेजेंट है, एंड सर्कुलर यानी कि जो गोल गोल है। नाउ मैंने इसको RS से याद किया, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। रेडियल मसल्स जो है ये सिंपैथेटिक कंट्रोल में रहते हैं, एंड सर्कुलर मसल्स जो है वो थर्ड नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व के कंट्रोल में रहते हैं। नाउ माइंडेड प्लीज नर्व लर्न ऑल द क्रेनियल नर्व्स बाय देयर नेम। अच्छा, अब ये कैसे याद रहेगा? सिंपैथेटिक है यानी कि रेडियल। अब देखो, जब ये रेडियल नर्व कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लुक एट इट, तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जो एपर्चर है ये बड़ा हो जाएगा, है ना? यानी कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो में जब बॉडी काफ़ी ज़्यादा किसी स्ट्रेस कंडीशन में, हमारे जो वेजो का जो यानी कि जो लिड है वो उसका जो है अपर्चर बड़ा होने वाला है, यानी कि जो उसका हमारे प्यूपिल का डायलेशन होने वाला है। वहीं पे सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी या जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो अपर्चर छोटा करने वाली है, बिकॉज दीज आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। सो आप RS से इसका न्यूमोनिक याद कर सकते हो, रेडियल सिंपैथेटिक। अब अगर मैं स्पेसिफिकली हार्ट की बात करूं, सो हार्ट का जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है इट इज़ बाय द वेगस नर्व। माइंडेड वेगस नर्व डज नॉट सप्लाई द मस्क्यूलर मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल। माइंडेड वेगस जो है वो वेंट्रिकल के मसल्स को सप्लाई नहीं करती है, ये सिर्फ AV नोड और SA नोड पे एक्ट करती है और एट्रियम पे एक्ट करती है। इसका काम मसल्स को सप्लाई करना नहीं है। वहीं पे सिंपैथेटिक पार्ट इज फ्रॉम T1 टू T5 सेगमेंट, जो कि अगेन मसल्स पे भी काम करती है, AV नोड और SA नोड पे भी काम करती है। नाउ सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, जब अब वी नीड टू नो कि जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है तो हाउ इट एक्ट्स ऑन दी हार्ट। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज में हार्ट रेट बढ़ जाती है ऑब्वियसली, मतलब कोई इंसान भाग रहा है, मतलब जैसे आप भाग रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो। अगेन ये दिस इज रिलेटेड टू दिस कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ना, मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का बढ़ना। दिस इज आई गेस इट इज रिलेटेड टू क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, हार्ट रेट का बढ़ना, this is related to I guess donotropic effect, and we have bathotropic effect, and we have ionotropic effect. I think मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। मायोकार्डियल, हाँ, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज रिलेटेड टू आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, हार्ट रेट इज रिलेटेड टू क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। ड्रोनोट्रॉपिक के अंदर हमारे पास जो है आई थिंक इम्पल्स डिस्चार्ज बनता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट, मैं एक बार वो रिवाइज कर लूँगी, बट आई विल टेल यू लेटर। वेजोडाइलेशन इज स्केलेटल मसल, वेजोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के अंदर वेजोडाइलेशन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम जनरली भूल जाते हैं, बिकॉज ये हमारे पास जैसे मसल्स है, ओके, तो अगर यहाँ पे वेजोडाइलेशन नहीं होगा तो जो मसल है उसको ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाएगा। इसीलिए मसल्स, स्केलेटल मसल्स के लिए जनरली इट इज़ वेजोडाइलेटिंग, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई मसल का बढ़ जाए और मसल की एक्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन ओवरऑल बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है और ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, एंड प्यूपिल डायलेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ वी हैव आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि वो कैसे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हाउ इट इज़ डिवाइडेड। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर सेलुलर लेवल पे बात करें, वी हैव आवर न्यूरॉन्स एंड वी हैव द ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स बहुत ही ब्यूटिफुली गाइटर में लिखा हुआ है, दे एक्ट लाइक ग्लू, दे डोंट हैव एनीथिंग, दे हैव डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द इम्पल्स कंडक्शन एंड ऑल, बट दीज आर द वन विच आर हेल्पिंग द न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन इज टू ग्लायल सेल का रेशियो 1:4 और 1:10 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। Now, glial cells are further divided into macroglial cells and microglial cells. Let's discuss microglial first. These are derived from the monocyte lineage and these are the scavenging cells. यानी कि basically these are something related to immunity. ठीक है, ये हमारे पास स्कैवेज करते हैं जो भी हमारे पास फॉरेन चीज़ें आती है। वहीं पे माइक्रोग्लायल सेल्स में फर्दर वी हैव एन एस्ट्रोसाइट एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स एज द स्टार शेड सेल्स विच आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन reinforcing the blood brain barrier, and this helps in the neurotransmitter uptake and redistribution। मतलब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर फैलता है साइनेप्स के अंदर उसका ये जो है इट हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ इट एंड इट रिडिस्ट्रीब्यूट्स इट, एंड H+ हाइड्रोजन पोटेशियम होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है अराउंड द सेंस। होम्योस्टेसिस माइंडेड इट इज़ नॉट समथिंग ओनली रिलेटेड टू द एंटायर बॉडी, सम कुछ अपने लोकल लेवल पे भी होम्योस्टेसिस होता रहता है। Then we have oligodendrocytes which again help in the myelination। माइलिनेशन में मदद करते हैं, कहाँ पे? They help in the myelination, मतलब हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे माइलिनेशन में हेल्प करते हैं। Now we have hierarchical organization। अच्छा, एक क्वेश्चन था नीट PG में एक बार पूछा था, एस्ट्रोसाइट्स जो है दे हेल्प इन द ब्लड ब्रेन बैरियर एस्टैब्लिशमेंट। ब्लड ब्रेन
बैरियर इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ एक्टिंग एट द लेवल ऑफ एंडोथीलियम, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है. तो उन्होंने ऐसा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर वैसे तो एस्ट्रोसाइट्स री करते हैं, बट एट द लेवल ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली एंडोथीलियम में वो टाइट जंक्शंस बनते हैं ताकि ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन रहे. देन वी हैव द हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लोएस्ट में आता है स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन टू एंड फ्रो पार्ट है बेसिकली. उसके अबव है वी हैव द लोअर ब्रेन रीजन दैट इज सब कॉर्टिकल, एंड देन वी हैव द हायर ब्रेन विच इज द कॉर्टेक्स. नाउ हाइएस्ट विच इज द हाइएस्ट सीट ऑफ कंट्रोल / कॉन्शियसनेस. अबव में हमारे पास मेडुला पॉन्स एंड सेरिबेलम आता है. मेडुला हैज़ वाइटल सेंटर, सीवीएस के लिए वीएमएस यानी कि वेजोमोटर सेंटर, आरएस के लिए सेंटर है, स्वैलोइंग सेंट्रल है जहाँ पे बेसिकली वट एवर वी ईट वी कैन स्वॉलो करने के लिए. देन वी हैव ब्रेन स्टेम जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. वेस्टिबुलर एंड रेटिकुलर, इसके लिए हमें याद आता है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट रहता है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट रहता है, टेक्टल स्पाइनल ट्रैक्ट रहता है. सो दीज आर ऑल द टैक्ट्स जिसके लिए हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन स्टेप में. देन वी हैव द न्यूक्लियाई फॉर पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम. ठीक है. देन हमारे पास पॉन्स के अंदर वी हैव न्यूक्लियाई फॉर मिक्चुरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है, रेस्पिरेटरी का जो हमने 12th लेवल पे पढ़ा है जो उसके लिए जो सेंटर रहता है. देन वी हैव मिड ब्रेन न्यूक्लियाई फॉर मोटर फंक्शंस, रेड न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स द प्रॉक्सिमल मसल. रेड में न्यूक्लियस जनरली जो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट हमने पढ़ा है, मतलब वील स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर, वो रेड न्यूक्लियस से रिलेटेड ही रहता है. ठीक है. एंड इट कंट्रोल्स द एक्सियल मसल्स ऑफ द, मतलब एक्सियल नॉट नहीं, पेरिफेरल मसल्स ऑफ द बॉडी. And then we have cerebellum जो कि which is the master coordination for the voluntary movements. So cerebellum is the master coordination for the voluntary movements of the body. Diencephalon has two parts, thalamus and hypothalamus. Okay, thalamus में have sensory relay station, सारी sensory nerves जो है वो thalamus में relay करते हैं, but mind it except olfactory. Olfactory does not relay in thalamus, minded all the sensory relay station के लिए जगह thalamus है. ये भी question आया था, again it was asked as a question, it can be asked as an MCQ. And hypothalamus में we have it controls the vegetative and visceral functions. Then we have our higher brain, that is cortex, which is further divided into neocortex and allocortex. Neocortex consists of 90% of the brain. It has frontal, parietal, temporal and occipital part. Occipital is for visual and temporal is for auditory. And allocortex, which is also called as archicortex, it is for the limbic system, which controls all the emotions and everything जो भी sexual related चीज़ें रहती है, arousal, emotions, everything, it is controlled by the limbic system. So here's your central nervous system का first part, and I hope you get it well because this is important. Then upcoming में हम लोग synapses, neurotransmitters को discuss करेंगे और भी ज़्यादा. We will study about the reflex arc, pain and all the tracts. So be with me guys. I hope कि आपको समझ आया होगा. And yeah, thank